In this session, we are going to discuss field of fractions of an integral domain. So let's recall few concepts from ring theory and from algebra. First of all, we know that an integral domain is a commutative ring. Commutative ring with identity, that is with multiplicative identity. Let's write it as 1, which does not contain zero divisors. So a commutative ring with identity which does not contain zero divisors is called integral domain. The simplest example is Z, the ring of integers. For example, Z, the ring of integers, is an integral domain. The next concept I am going to recall is that of an equivalence relation. So let's recall the definition. A relation, let's denote it by the symbol tilde. So a relation tilde on a set A is called equivalence relation if conditions are, first of all, this relation has to be reflexive, is reflexive, and this means every element of set A is related with itself. Secondly, tilde is symmetric. This means that if A is related with B, then B is also related with A. And thirdly, tilde is transitive. And this means that if A is related with B and B is related with C, then this implies that A is related with C. So a relation which is reflexive, symmetric, and transitive is called an equivalence relation. So before coming to the concept of field of fractions of an integral domain, let's consider an example for motivation of this particular construction. So consider, let me write this as motivation. For field of fractions.
of of Z. Let's consider field of fractions of Z for motivation of this particular concept. So we have Z, and we know that this is the set Z. This is a ring with identity and it does not contain zero divisors. So Z is an integral domain. Now consider the set of non-zero elements of Z. Let's write it as S. This is equal to those elements of Z which are not equal to 0. S belonging to Z such that S is not equal to 0. So you can see these are, we will simply take out 0 from this set and we will get S. This is equal to 1, 2, 3 and so on. So this is Z taken 0 away from it. If you like, you can write it. This is equal to Z minus 0 taken out of it. So we have denoted this set by S. And note that this set S is closed under multiplication, because if you multiply two non-zero elements of Z, you will get a non-zero element of Z. These are non-zero elements of Z because Z is an integral domain. So we note that S is Z with 0 removed from it. So we note that S is closed under multiplication. And further, we can see that multiplicative identity 1 belongs to S. So the set of non-zero elements of Z is closed under multiplication, and this contains multiplicative identity 1. Now let's consider Cartesian product of Z with S, Z cross S. So this is equal to order pair AS such that A belongs to Z and S belongs to S. Z cross S, this is equal to set of all those order pairs whose first elements are from Z and second elements are from S. And if you like, we can write it as this is set of all those order pairs such that first and second elements of these order pairs are integers, but second element cannot be equal to 0. S is not equal to 0. We can write it in this way, or if we like, we can write it in this way. So we define a relation by saying that AS order pair is related with BT order pair if and only if A multiplied with T is equal to B multiplied with S. Note that A
multiplied with T and then B multiplied with S. So A multiplied with T is equal to B multiplied with S. This is an equivalence relation. This is an equivalence relation. We are not going to prove it now, but we will prove it in more general setting. So we shall prove it later in more general setting. So this is an equivalence relation. You know that whenever we talk about an equivalence relation, we always obtain equivalence classes corresponding to that equivalence relation. So the equivalence class of this particular order pair AS would be written as A बाय, ये वही चीज़ है जो आप A बटा S कहा करते हैं जब आप रैशनल नंबर्स की बात करते हैं. एनीवे, प्रेजेंटली इट इज जस्ट अ सिंबल. इक्विवेलेंस क्लास ऑफ दिस ऑर्डर पेयर A comma S will be represented by this particular symbol A by S. And let the set of these equivalence classes be let the set of these equivalence classes be. So let the set of equivalence classes be, these are the equivalence classes A by S such that A belongs to Z and S belongs to S. So this is set of all the equivalence classes under the equivalence relation we have defined above, and we denote it by S. We write -1 here and then Z. तो ये एक स्टैंडर्ड नोटेशन है जो अक्सर कॉम्यूटेटिव अलजेब्रा पर आथर जो हैं जो लिखते हैं बुक्स वो इस नोटेशन को इस्तेमाल करते हैं. कॉल इट S इनवर्स Z, S raised to power -1 Z. Anyway, this is set of equivalence classes of the equivalence relation we have defined above. On this set we define addition and multiplication as follows. In fact, we shall prove that this we will not prove, in fact we just give an outline of the proof that S inverse Z is a field. So we shall sketch an outline of the proof that S inverse Z is a field. And in order to prove that some particular set is a field, we have to define addition, multiplication, and then there are certain conditions. So first of all, we come to addition. So we define addition on addition in S inverse Z as
if we are given two elements of S inverse Z, suppose one element is A by S and second element is B by T, we define their addition as S multiplied with T and then AT plus BS. You will note that you are a bit familiar about this particular addition which we have defined here, and we define multiplication as multiplication in S inverse Z as, again, if we are given two elements of S inverse Z, A by S and B by T, we define their product as AB by ST, and it is again something you are quite familiar with. So this is the way we defined multiplication. And this addition and multiplication, both operations are well defined. These operations are well defined. मैं आपको रिकॉल करवा दूं कि जब भी हम इक्वलेंस क्लासेस के साथ काम करते हैं तो जो भी ऑपरेशन हम डिफ़ाइन करते हैं, जो भी मॉर्फिज्म हम डिफ़ाइन करते हैं, हम इस्टेब्लिश करते हैं कि दैट इज़ वेल डिफाइंड. फॉर द टाइम बीइंग हम इसे यहाँ प्रूव नहीं कर रहे, लेकिन हम इसे प्रूव करेंगे इन बिट मोर जनरल सेटिंग. सो दीज ऑपरेशंस आर वेल डिफाइंड. लेट मी राइट हियर, वी शैल prove it in more general setting. सो इस वक्त तक हमने जो किया है वो हमने S इनवर्स Z पर एडिशन डिफ़ाइन की है और मल्टीप्लिकेशन डिफ़ाइन की है, और जिस तरीके से हमने ये ऑपरेशन डिफ़ाइन किए हैं आप उससे काफ़ी हद तक अपनी स्कूल टाइम की मैथमेटिक्स की लर्निंग से फैमिलियर हैं. सो नेक्स्ट वी नोट दैट under these operations S inverse Z U set हमारे पास है becomes a field. मैं यहाँ ये नोट कर दूँ कि ये जो ऐड करने के बाद जो रिज़ल्ट है इसे भी आप देख सकते हैं, दिस बिलोंग्स टू S इनवर्स Z, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिज़ल्ट आता है दिस आल्सो बिलोंग्स टू S इनवर्स Z. यू कैन convince yourself very easily. So under these operations S inverse Z becomes a field. Let's see how it works. So first of all, S inverse Z is abelian group under addition with, मुकम्मल प्रूफ नहीं, मैं सिर्फ स्केच कर देता हूँ इस चीज़ को. सो दिस इज़ abelian group under addition with additive identity given by एडिटिव आइडेंटिटी को अगर हम ज़ीरो से रिप्रेजेंट करें तो दिस विल बी इक्वल टू 0/1, इफ़ यू लाइक 0/-1 इज़ इक्वल टू 0/2
same thing 0 upon minus 2 is equal to and so on. लेकिन 0 1 जो ऑर्डर्ड पेयर है उसकी इक्विवेलेंस क्लास दैट इज इक्वल टू एडिटिव आइडेंटिटी एंड देन एडिटिव इनवर्स and additive inverse of let's say A up by S belonging to S inverse Z is given by A by S का जो एडिटिव इनवर्स है दैट इज गिवन बाय माइनस A बाय S और आप चेक कर सकते हैं दिस इज एडिटिव इनवर्स विच आल्सो बिलोंग्स टू S इनवर्स Z। तो मैंने सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स का जिक्र किया है, बाकी सारी चीज़ें बड़ी आसानी से चेक की जा सकती हैं। सो S इनवर्स Z इज़ अ बीलियन ग्रुप अंडर एडिशन। बाकी चीज़ें डिटेल में मैंने यहाँ नोट नहीं की, यू नो दैट व्हाट दोज कंडीशंस आर। मैंने सिर्फ एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स को मेंशन किया है। तो ये तो था अबाउट एडिशन। नाउ वी कम टू ऑपरेशन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, हाउ डज दैट वर्क। सो आल्सो अगर आप S इनवर्स Z में से आप 0/1 की इक्विवेलेंस क्लास निकाल दें, 0/1 इज इट सेल्फ इक्विवेलेंस क्लास। तो अगर आप S इनवर्स Z में से 0/1 निकाल दें विच इज़ 0 इन S इनवर्स Z जो हमने ऊपर नोट किया है, देन दिस बिकम्स अ बिलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। Under multiplication with multiplicative identity, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इस केस में ये होगी 1/1 जो कि विच इज सेम थिंग एज -1/-1, ये इक्वलेंस क्लासेस बराबर होंगी। 2/2 which is same thing as -2/2, -2/-2, and then 3/3 which is same thing as -3/-3 and so on। ये सब इक्वलेंस क्लासेस आपस में बराबर है। सो दिस इज multiplicative identity with this as multiplicative identity। And multiplicative inverse of equivalence class A by S belonging to S inverse Z is given by S by A, and you can see that also belongs to S inverse Z। सिर्फ एक चीज़ हमें नोट करनी चाहिए कि A जो है दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर A 0 हो गया तो फिर ये 0 एलिमेंट हो जाएगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिर्फ नॉन ज़ीरो एलिमेंट्स का डिफाइन किया जा सकता है इसमें। सो दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ A/S। सो S/A is multiplicative inverse of A/S। So thirdly, we can easily verify that
multiplication distributes over addition. We can easily verify that multiplication distributes over addition. So this can be verified very easily that multiplication distributes over addition. So all these conditions we have discussed above establish that S inverse Z is a field. Thus, S inverse Z is a field. सो ये फील्ड जो है इसे आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं. हमने इनफैक्ट फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस ऑफ जेड कंस्ट्रक्ट किया है जिसे आप फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स के तौर पर भी जानते हैं इससे पहले. So this is in S inverse Z is in fact Q, that is field of rational numbers. Let me just note here. S inverse Z is in fact Q, the field of rational numbers. तो ये एग्जांपल हमने सिर्फ लिया कि हमारी एक तो टर्मिनोलॉजी इस्टेब्लिश हो जाए और दूसरे हम इसका एब्स्ट्रैक्ट स्ट्रक्चर हम देख सकें. सो हैविंग डन दैट, लेट्स कम टू अ वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन. अब देखिए ऑब्जर्वेशन ये है कि ये जो रिंग ऑफ इंटीजर z है, इस रिंग ऑफ इंटीजर z से लेकर ये जो हमने फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस बनाया है S इनवर्स z, जो खुद आप जानते हैं कि दिस इज़ आल्सो अ रिंग. तो z से लेकर S इनवर्स z तक हमारे पास एक रिंग होमोमॉर्फिज्म है जो बड़ा सिंपल है, बड़ा नेचुरल है. सो वी हैव अ रिंग होमोमॉर्फिज्म. Ring homomorphism. Let me recall it again. Every ring is commutative ring. Every ring is commutative. Every ring is commutative ring with identity, with multiplicative identity 1. So I have just noted that. So we have a ring homomorphism. अब ये Z से लेकर S इनवर्स Z जो कि आप जानते हैं यकीनन एक commutative ring with identity है. In particular this becomes a field. So we have a ring homomorphism from Z into S inverse Z. Let's write it as F given by, और बड़ी आसानी से आप गेस कर सकते हैं, दिस इज़ गिवन बाय, आपको z का कोई भी एलिमेंट a दे दिया जाए तो एफ ए विल बी इक्वल टू a बाय 1. In fact this ring homomorphism is injective. This ring homomorphism
इज़ मोनो, ये इस केस में मोनो है, इन दिस केस। इन जनरल ये मोनो नहीं होता, लेकिन इस केस में ये मोनो है। और आप ये कहते हैं कि रिंग Z जो है ये फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस में एम्बेडेड है। ये रिंग Z या इंटीग्रल डोमेन Z इनफैक्ट वी मस्ट से इज़ एम्बेडेड इन द फील्ड ऑफ फ्रैक्शन जो हमने इसे कंस्ट्रक्ट किया है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन, वी हैव अ रिंग होमोमॉर्फिज्म and you can check it that this is a ring homomorphism. You can check that F is monomorphism, ring homomorphism, and then this is injective. So you can check it on your own. This is a ring monomorphism. It has a very particular property. This has a property, this ring homomorphism F has a property that और ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ अलजबरा में, इस किस्म की कंडीशंस अलजबरा में अक्सर आती हैं। सो दिस रिंग होमोमॉर्फिज्म हैज़ अ प्रॉपर्टी दैट फॉर एनी रिंग होमोमॉर्फिज्म, that for any ring homomorphism आपको कोई भी रिंग होमोमॉर्फिज्म दे दिया जाए, लेट्स से इट G फ्रॉम Z to B is again a commutative ring with identity, so that आपको कोई भी ऐसा रिंग होमोमॉर्फिज्म Z से लेकर किसी कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी तक दे दिया जाए इस तरह से कि G जब Z के उन एलिमेंट्स पर इफ़ेक्ट करे जो S के एलिमेंट्स हैं, तो जो B में GS रिज़ल्ट आएगा वो B में इन्वर्टिबल होगा या उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। सो दैट GS इज़ यूनिट। आप जानते हैं यूनिट के माने होते हैं, किसी भी रिंग में यूनिट आप उस एलिमेंट को कहते हैं जिसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एग्जिस्ट करता हो। सो GS इज़ यूनिट इन B फॉर एनी S बिलोंगिंग टू S, जो आप जानते हैं कि Z का सबसेट है। तो Z के आप उन एलिमेंट्स पर G को जब इफ़ेक्ट करेंगे जो S के एलिमेंट्स हैं, तो जो G का रिज़ल्ट आएगा वो इफ़ेक्ट करने के बाद GS वो इन्वर्टिबल होगा को डोमेन वाली रिंग B में, विल बी यूनिट इन B. So if there exists such a ring homomorphism, then this is the property in fact we are emphasizing on. Then there exists a uniqueness is very important. Note that हम इसे प्रूव तो नहीं करेंगे इस वक्त, लेकिन we will do it at some stage. Then there exists a unique ring homomorphism H from S inverse Z to B such that G is equal to H composed with F. That is, अब देखिए जो चीज़ मैंने लिखी है
आपको सेंटेंसेस में तो ज़्यादा क्लियर ज़हन में पिक्चर नहीं बनती, लेकिन आप इस डायग्राम पे गौर कीजिए जो अभी हम बनाने लगे हैं। अब देखिए इस तरह से है कि हाँ, ये जो रिंग Z हमें गिवन है, रिंग ऑफ इंटीजर्स, इससे हमने ये S इनवर्स Z बनाया है, जो आप जानते हैं कि फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस है या ये फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स है। तो Z से लेकर S इनवर्स Z तक हमने ये एक फंक्शन भी डिफाइन किया है f, जो बड़ी सिंपल सी फंक्शन है, विच टेक्स एनी एलिमेंट्स टू, मतलब यहाँ पर 6 गिवन है आपको तो इट विल बिकम 6/1। यहाँ अगर आपको -9 गिवन है तो इट विल बिकम -9/1 S इनवर्स Z में आकर। सो f इज़ डिफाइंड एज FA इज इक्वल टू A/1। तो ये तो हमें एक रिंग होमोमॉर्फिज्म गिवन है। जो प्रॉपर्टी हमने ऊपर लिखी है वो कहती ये है कि अगर Z से लेकर आपको किसी और रिंग तक, Z से लेकर किसी भी और रिंग, कम्यूटेटिव रिंग विद आइडेंटिटी, तो Z से लेकर अगर आपको किसी और रिंग B तक आपको एक रिंग होमोमॉर्फिज्म G मिल जाए, लेकिन ये रिंग होमोमॉर्फिज्म ऐसा होना चाहिए कि ये Z के अंदर जो S के एलिमेंट्स हैं उन पर जब इफ़ेक्ट करेगा तो जो रिजल्ट्स आएंगे B में वो यूनिट्स होने चाहिए, वो B में इन्वर्टिबल होने चाहिए। अगर ऐसा हो तो फिर आपको S इनवर्स Z से लेकर B तक एक यूनिक रिंग होमोमॉर्फिज्म मिलेगा H, सच दैट कि अगर आप H को F के साथ कंपोज करें, H सर्कल F इज इक्वल टू G, तो इन दोनों की कंपोजिशन G के बराबर आ जाए, तो दैट इज़ दिस डायग्राम, इसे हम मैथमेटिकली कहते हैं दैट दिस डायग्राम कम्यूट्स। सो दिस इज़ द प्रॉपर्टी। अब देखिए मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। रिंग ऑफ इंटीजर से हमने फील्ड ऑफ फ्रैक्शंस बनाया है जो कि फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स है, और हम जानते हैं कि Z का हर एलिमेंट रैशनल नंबर्स में आपको मिल जाता है। यहाँ अगर 6 होगा तो यहाँ 6/1 आ जाएगा, यहाँ अगर 9 होगा तो यहाँ 9/1 आ जाएगा। सो Z इज़ एम्बेडेड इन S इनवर्स Z इन द फील्ड ऑफ रैशनल नंबर्स। तो ये तो एक नेचुरल सा रिंग होमोमॉर्फिज्म है जो आपको मिलता है। प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आपको Z से लेकर किसी और रिंग B तक एक रिंग होमोमॉर्फिज्म ऐसा मिल जाए जो Z के अंदर जो सेट S है उसके एलिमेंट्स पर जब G इफ़ेक्ट करे तो जो रिजल्ट्स हैं वो B में यूनिट्स हों या इन्वर्टिबल हों, तो फिर आपको S इनवर्स Z से लेकर B तक एक यूनिक रिंग होमोमॉर्फिज्म H ऐसा मिलेगा कि जिसको F के साथ कंपोज करें तो रिजल्ट G के बराबर आए। सो दिस व्हाट दिस प्रॉपर्टी सेज। सो ये हमने नोट किया है इन द फॉर्म ऑफ field of fractions of integral domain of integers. So let's see how we define H. We define H as S इनवर्स Z का कोई एलिमेंट आप ले लीजिए। S इनवर्स Z के एलिमेंट्स इस तरह के होंगे, A/S, A जो है वो Z के एलिमेंट होगा, S जो है वो S का एलिमेंट होगा। तो HA/S इज इक्वल टू, ये हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि A पर आप G का इफेक्ट ले लें। अब देखिए A चूँकि Z को बिलोंग करता है तो आप A पर G अप्लाई कर सकते हैं, ये B में आ जाएगा। और ये जो S है इस पर भी आप G का इफेक्ट ले लें, चूँकि S जो है ना ये भी Z को बिलोंग करता है, तो S पर आप G का इफेक्ट ले लें। और जो GS रिज़ल्ट आएगा वो चूँकि B में यूनिट है, इन्वर्टिबल है, तो आप इसका इन्वर्स लेके इसी से मल्टीप्लाई कर दें। सो दिस इज़ द वे वी डिफाइन दिस रिंग होमोमॉर्फिज्म, दिस यूनिक रिंग होमोमॉर्फिज्म। बाकी कंडीशन अगर आप चाहें तो आप चेक कर सकते हैं कि दिस रिंग होमोमॉर्फिज्म कंपोजिशन जो है ना वो H सर्कल F जो है वो G के बराबर आती है। बट एनीवे नोट दिस पर्टिकुलर रिंग होमोमॉर्फिज्म। सो लेट मी नोट दैट we have in fact discussed construction of
discussed construction of Q. You know that Q is the field of rational numbers. The field of rational numbers. So we have discussed construction of Q, the field of rational numbers, from Z, the ring of, या the integral domain of integers. These things work because Z is an integral domain. इसमें zero divisors नहीं होते. So the integral domain of integers. Let me recall that. ये पहले भी मैं मेंशन कर चुका हूँ कि 2/3 वही चीज़ है जो कि -2/-3 है. ये वही चीज़ है जो कि 4/6 है. ये वही चीज़ है जो -4/-6 है. और ये वही चीज़ है जो -6/-9 है. एंड देन दिस इज सेम थिंग एज 6/9 एंड सो ऑन. तो ये इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में बराबर है कि ये सब एक दूसरे के साथ रिलेट करते हैं उस इक्विवेलेंस रिलेशन के तहत जो हमने शुरू में डिफाइन किया था. वी हैव रिटन दीज एज इन अबव डिस्कशन. शुरू में जो हमने लिखा था इन अबव डिस्कशन. तो इनको शुरू में जब इक्विवेलेंस रिलेशन हमने डिफाइन किया था तो 2/3 के मानी दरअसल ये इस तरह से हमने लिखा था 2/3. फिर -2/-2 -3 इस तरह हमने. और ये दीज आर रिलेटेड विद ईच अदर. एंड -2 -3 is related with 4 6. You can see that very easily. 4 6 is related with -4 -6. -4 -6 is related with -6 -9. आप चेक कर सकते हैं जो हमने रिलेशन डिफाइन किया था. एंड दिस इज रिलेटेड विद 6 9 एंड देन सो ऑन. ये सब आपस में रिलेटेड है. तो ये जो चीज़ इस तरह से हम लिखते हैं रूटीन में, इससे पहले अगर आप इनको Z क्रॉस S के एलिमेंट्स के तौर पर देखें जिन पर हमने इक्विवेलेंस रिलेशन डिफाइन किया था, तो वो फिर ये चीज़ें थी. और ये जो आप लिखा करते हैं अपने स्कूल टाइम पर, वो दरअसल इस इक्विवेलेंस रिलेशन के तहत 2,3 की इक्विवेलेंस क्लास होती है. तो ये चूँकि सब आपस में रिलेटेड हैं, इसलिए इनकी इक्विवेलेंस क्लासेस आपस में बराबर होती हैं. सो हैविंग सेड दैट, सो ऑल दीज आर इक्वलेंट बिकॉज मैंने आपको ये रीज़न इसकी बता दी है. सो एट स्कूल लेवल आप जानते हैं कि इन चीज़ों को, वो जो ऑर्डर पेज हैं उनको भी आप बटे की शक्ल में लिखते हैं. और इक्विवेलेंस क्लासेस वहाँ पर हम इतनी एहतियात नहीं करते. तो ये चीज़ें हमें एक जैसी नज़र आती हैं, बट हमने इन चीज़ों को अब बहुत क्लियरली लिख दिया है. So we generalize this discussion in the following proposition. We generalize this discussion in the following proposition. लेकिन प्रोपोजिशन से पहले हमें
एक और रिज़ल्ट की ज़रूरत पेश आएगी, उस बात को हम ज़रा नोट कर लेते हैं कि recall that but first we need few concepts रिकॉर्ड। हमें ये चीज़ें हमने पहले की हुई हैं, लेकिन हम इन चीज़ों को रिकॉल कर लेते हैं ताकि हमें फर्दर डेवलपमेंट में आसानी हो। सो रिकॉल दैट वी हैव डिफाइंड that A belonging to R is commutative ring with identity, is zero divisor. Is zero divisor if A कंडीशन तो ये है कि A ज़ीरो नहीं होना चाहिए, A is not equal to ज़ीरो, and there exists B belonging to R जो कि ज़ीरो ना हो, such that AB is equal to ज़ीरो। तो एक नॉन ज़ीरो एलिमेंट जो है वो ज़ीरो डिवाइज़र होगा अगर वो किसी नॉन ज़ीरो एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होकर रिज़ल्ट ज़ीरो दे दे। सो दिस इज़ डेफिनेशन ऑफ ज़ीरो डिवाइज़र। एक और डेफिनेशन जो हमने नहीं की थी लेकिन हम इस पर बेस करते हुए बड़ी आसानी से डिफ़ाइन कर सकते हैं, वी मे आल्सो डिफ़ाइन, इसे हम बाकायदा डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं और ये डेफिनेशन होगी नॉन ज़ीरो डिवाइज़र की, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र। तो नोट कीजिए ज़ीरो डिवाइज़र तो ऐसा नॉन ज़ीरो नंबर है जो जिसके लिए आपको कोई ऐसा नॉन ज़ीरो नंबर मिल जाए कि दोनों का प्रोडक्ट जो है वो ज़ीरो हो जाए। नॉन ज़ीरो डिवाइज़र जो है ना वो इससे अपोजिट चीज़ होगी। लेट्स डिफाइन दैट, लेट R be a commutative ring with identity, commutative ring with identity with 1, then A belonging to R is called non-zero divisor, zero divisor की opposite non-zero divisor is called non-zero divisor। condition वही है number 1, if A is not equal to 0, this is the first condition, and for any B belonging to R, अगर A और B का प्रोडक्ट ज़ीरो हो जाए तो फिर B को ज़ीरो होना चाहिए। तो अब देखिए नॉन ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन ये है कि एक ऐसा एलिमेंट जो ज़ीरो ना हो, या नॉन ज़ीरो डिवाइज़र एक ऐसा नॉन ज़ीरो एलिमेंट होता है जिसका किसी एलिमेंट के साथ अगर प्रोडक्ट ज़ीरो आ जाए तो वो एलिमेंट जिसके साथ आप इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो एलिमेंट फिर ज़ीरो हो जाए। ए चूँकि ज़ीरो नहीं है तो देन ए इज़ नॉन ज़ीरो डिवाइज़र इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो ऑलवेज इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, और ए खुद नॉन ज़ीरो है। सो नोट दैट पर्टिकुलर कंडीशन, ए बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो इम्प्लाइज दैट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो
अगर ये कंडीशन होल्ड करे देन ए इज़ कॉल्ड नॉन ज़ीरो डिवाइज़र। मैं यहाँ नोट कर देता हूँ एक बात, कुछ बुक्स जो है ना वो नॉन ज़ीरो डिवाइज़र को रेगुलर एलिमेंट भी कहती हैं। सम ऑथर्स कॉल non-zero element, non-zero divisor as regular element। ये बहुत पॉपुलर फ्रेज़ नहीं है रेगुलर एलिमेंट। इसकी वजह ये है कि रिंग थ्योरी में रेगुलर होने के मायने कुछ और भी हैं, तो फिर ज़रा कन्फ्यूजन पैदा होती है। इसलिए वी विल स्टिक टू नॉन ज़ीरो डिवाइज़र टर्मिनोलॉजी पर। ज़ीरो डिवाइज़र, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र। ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन ऊपर आपने देख ली है, नॉन ज़ीरो डिवाइज़र की डेफिनेशन ये है जो कि आपने अभी देखी है। प्रोपोजिशन से पहले हम एक छोटा सा रिजल्ट प्रूव कर लेते हैं। लेट्स कॉल इट लेमा। हमें इस रिजल्ट की ज़रूरत पेश आएगी प्रोपोजिशन के लिए, सो वील कॉल इट लेमा। लेट आर बी अ कम्यूटेटिव रिंग